Vivek, welcome to Telechaska, and you have been declared as the most first nude yoga uh, trainer in the India. So, how does it make you feel, or how it goes with you? Uh, anything which you venture out as a pioneer and you start it and you lead the path, it definitely has its pros and cons, but it gets you more popularity, it gets you more visibility. So I take everything and I look at the brighter and the positive side. Yes, it's a wonderful experience of being India's first naked yoga trainer. However, when we talk about yoga, yoga is something which has been originated in India, which has been practiced by all the saints, yogis, rishi munis who used to do tapasya. They still do tapasya at the Himalayas. So yes, it's a wonderful experience. It's a wonderful journey, and I, being of India's first yoga trainer, definitely gets me more fortune. Absolutely. So, when did you started practicing it and realizing it that this is the way you can follow throughout your life and you can get peace, following this path? Honestly, I when I started it practicing yoga, I didn't know the benefits of yoga because I was on the verge of an emotional breakdown, and my friend had taken me to one of those yoga workshops, and this is, I'm talking about 2004 and 5, when in India only Bharat Thakur was popular and people used to practice yoga only for the weight loss. लोगों को लगता था अगर वजन कम करना है तो चलो एक योगा करते हैं, वजन कम हो जाएगा और हम अच्छे पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, या जिनको बॉलीवुड या टीवी या मॉडलिंग में डेब्यू करना होता था, they used to practice yoga. So yoga was something which was always recognized by upper class people just to shed the kilos. So the person who had taken me to that particular yoga workshop had already been practicing yoga, and the person knew the benefits of yoga. So I also had the similar myth कि योगा का मतलब कुछ आसन किया और आप एकदम से हंक हो जाओगे Yeah. और ऋतिक रोशन जैसे परफेक्ट लीन फिजिक हो जाएगा। नहीं यार, योगा एक 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 जीवन पद्धति जीने की शैली है। It's a way of living a balanced life. Yoga is a blend of certain yogic asana which needs to be practiced in yogic breathing, which is called Ujjayi breathing, and eventually it leads to meditation. So I started practicing yoga in 2004, and since then there is no looking back. Okay, so during this journey, what have you learned and you would like to share with the people कि योगा से इतने फायदे हैं और kind of tips you can give to people out there. रिद्धि, मैं टेलीचस्का के माध्यम से ये सबको बताना चाहूंगा, अगर आप सचमुच अ, योग को अपनी जीवन शैली में अपनाते हो, ये एक योग की पद्धति से अपना जीवन जीते हो, तो आपको छोटे मोटे विकार नहीं होंगे, आपको छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी, और आपका डॉक्टर और मेडिकल स्टोर पे बहुत कम खर्चा लगेगा। योगा जब आप करते हो तो योगा सिर्फ आपकी बॉडी को स्फूर्ति और संचारित नहीं करता है, ये आपके दिमाग को भी सिंक्रनाइज करता है आपकी बॉडी के साथ। आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो, आपका शुगर लेवल हो, अगर आप ढंग से योग पद्धति फॉलो कर रहे हो, ये सबको चेक करता है। इट ऑल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस वेट। अगर आपने योगा और एक्सरसाइज के ब्लेंड के थ्रू वेट लॉस करा है तो आप कभी हैगर्ड, कभी बूढ़े नहीं दिखोगे, आपकी स्किन रिजुविनेटेड रहेगी, वो सेम ग्लो रहेगा। हाउएवर, योगा के थ्रू जब आप कोई भी चीज को अटेन करना चाहोगे तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप Yeah. जिम जाके रिगरस एक्सरसाइजेस करोगे और बहुत ज्यादा पसीना बहाओगे तो हो सकता है आप 3 महीने 4 महीने में 6 किलो या 8 किलो वजन कम कर लो। योगा से वही वजन आप 8 महीने या 9 महीने में कम करो, बट दैट इज परमानेंट, और वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा। हाउएवर, जो है, अगर आपने जिमिंग में करा है, स्टेरॉइड्स लेके करा है, फैट बर्न से करा, तो आपकी स्किन सैग हो जाएगी, यू विल स्टार्ट लुकिंग ओल्डर एंड हैगर्ड। सो इसके अलावा आज की डेट में हम लोग इतना मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस करते हैं, बहुत से Yeah. लोग योगा को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि उनको लगता है, पहली बात तो योगा नाम की कोई चीज नहीं, इट्स योग। योग इज अ मिश्रण, इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। It has become yoga when it reached to Western people. It got popularized there. Then it everybody started aping it. Everybody started following it and practicing it.
It is very important to do the meditation also following the certain breathing pattern. Once you cool, calm, and composed, even if you're in a bad situation, or if there is something which is not nice or which is not being done as per you, and your mood is upset and your blood pressure fluctuates, these yogic breathing helps you to control that. So it has a lot of benefits. ओके, टू द न्यू बिगनर्स जो भी बिगिन करते हैं इस चीज के साथ, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि स्टार्टिंग में किस तरह से इस चीज को फॉलो करना चाहिए या इस तरह से इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए? सो बेसिकली फॉर द बिगनर्स व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? देखिए, कोई भी नई चीज आप शुरू करते हो, जब आप उस पर अथॉरिटी नहीं होते हो, जैसे कल को मैं अगर कलरिंग शुरू करूँ या पेंटिंग शुरू करूँ, तो मुझे एक गुरु की जरूरत होगी जो मुझे उसकी बारीकियां बताएगा, मुझे कमियां बताएगा और कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, खामियां बताएगा। पेंटिंग तो तब भी एक एक कैनवस पे की जाती है और उसमें जो गलतियां होती हैं, देयर इज अ स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन। मैं ऑनलाइन योगा या जो लोग यूट्यूब से किसी पर्टिकुलर एक्टर का या एक्ट्रेस का या किसी बाबा का योगा देख के योगा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको इनिशियली शुरू के कुछ महीनों में किसी ट्रेंड योगा ट्रेनर के अंडर योग आसन और अपने जो भी ब्रीदिंग आसन हैं और जो भी मेडिटेशन है उसको परफॉर्म करने की जरूरत है, जिससे आप चीजों को एक्सीड मत करो। इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आपने बहुत ज्यादा अगर मानिए सिंह प्राणायाम कर लिया तो आप ब्लैक आउट हो सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेचेस कर लिए या कोई पर्टिकुलर आसन आपने बहुत ज्यादा कर लिया तो आपको बैक एक की समस्या होती है। तो आप हमेशा जब भी शुरुआत करें वो ऑनलाइन ना करें, ऑफलाइन करें। आपके आसपास जो भी एक व्यक्ति जो आपको लगता है कि जिसको योगा की काफी कुछ नॉलेज है या जो सर्टिफाइड है, उसके अंडर सीखें एंड देन टेक इट अप फर्दर अकॉर्डिंगली। तो मेरे बिगिनर्स को यही सलाह होगी। ओके, एंड यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की भी बात करें एंड मेडिटेशन विच कम्स अंडर योग, जैसे कि अभी आपने बताया, सो हाउ डज मेडिटेशन हेल्प्स टू बी इन द गुड मूड एंड हेल्प्स टू थिंक प्रॉपर्ली? सब कुछ तो हमारे मन से है। मन से सोचे तो हम राजा हैं, मन से सोचे तो हम फकीर हैं। हमारे पास सब कुछ हो, बहुत बड़ा नेपन्सी रोड पे बंगलो हो एंड हमारा खुद का चार्टर्ड प्लेन खड़ा हो, लेकिन अगर अंदर से हम दुखी हैं, मन से दुखी हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू गेट मी या एनीथिंग। What yoga does when you meditate, you try to synchronize your body, your breathing with your mind, जो कि बहुत हार्ड है, बहुत 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 हार्ड है। बहुत मुश्किलों के बाद ऐसा होता है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा होता है। मेडिटेशन आपके अंदर स्थिरता लाता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो मेडिटेशन आपकी जिंदगी में एक ठहराव लेकर आता है, जो आपको शून्य की स्टेज में ले जाके आपको आपके आसपास हो रही चीजों से अवगत कराता है और आपको ये महसूस कराता है कि whatever is happening, the acceptance, the rejection, the affection and the affirmation, everything is in your hand. आप एक्सेप्ट करोगे। आपने अब किसी ने मुझे कुछ बुरी बात कही, अगर मैंने उसके ऊपर नहीं ली तो वो बुरी बात उसके ऊपर चली गई। सो ये हमको एक बैलेंस तरीके से जीना सिखाता है और आपके आपके जीवन को ये किसी तरीके से बहुत ग्राउंडेड रखता है। व्हेन आई मीन ग्राउंडेड, इट मींस it teaches you not to be more vulnerable, not to be more emotional. You need to live a balanced life. आज की डेट में क्यों इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से, काम का चाहे प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे सब में एक होड़ लगी हो अच्छा करने की, उस तरीके से लोगों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। लेकिन आप चंद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे थोड़ी देर, और ऐसा नहीं कि मेडिटेशन के लिए आपको पलथी मार के एक साधु संत की तरह बैठना है। शवासन बहुत बहुत एक बहुत बेसिक सा आसन है, जिसमें जैसे आप देखिए जब डेड बॉडी को लिटाया जाता है तो उसके दोनों हाथ और दोनों पांव सीधे होते खुले होते। आप उस तरीके से लेट जाइए। आप 2 मिनट को अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करिए। जब आप स्थिर करेंगे, आप ब्रीदिंग ऊपर नीचे करेंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका रक्तचाप है, वो भी नॉर्मल होगा।
आपके जो थॉट हैं वो बदलेंगे। आप अगर गुस्से में भी होंगे, इरिटेटेड, एजिटेटेड होंगे, आप बड़े कूल, काम एंड कंपोज्ड हो जाएंगे। तो आप कोई भी इररेशनल डिसीजन नहीं लेंगे अपने दिमाग से। सो दैट इज व्हाई इट हेल्प्स यू टू किक ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिजीजेस, जो कि अभी भारत में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन कई वेस्टर्न कंट्रीज में मेडिटेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। एब्सोल्युटली। जब आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी, चाहे योग हो या मेडिटेशन हो, सो हाउ डज इट चेंज योर पर्सोना, योर पर्सनैलिटी? हाउ इट हेल्प यू पर्सनली? वेरी गुड क्वेश्चन रिधि। रिधि, आई वाज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, और मुझे ना जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता था। मेरा इमीडिएट रिएक्शन होता था, और मेरे अंदर शायद कंपैशन नहीं था। मैं सोचता था अगले ने ये बोला तो क्यों बोला, एंड हाउ डेयर द पर्सन सेड दैट। Then I started practicing yoga, और ये तुरंत नहीं होता। योगा इज नॉट ए 2 मिनट नूडल्स की आपने 6 महीने योगा मेडिटेशन करा, आप एक परिपक्व योगी बन गए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। लोगों को बरसों गुजर जाते हैं। मेरे को भी ऑलमोस्ट अच्छे खासे 17 साल हो गए योग प्रैक्टिस करते हुए। तो एक समय के बाद आपकी जिंदगी में ठहराव आता है, वो भी अगर आप रेगुलर हो। मेरे अंदर क्या बदलाव आया, मैं ना बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था। मैं लोगों की बातों से बहुत कैरिड अवे हो जाता था। किसी ने कुछ गलत बोला या कुछ ऐसा छप गया मीडिया में मेरे बारे में जो कि सही नहीं है, तो मैं पूरी रात रोता रहता था। मेरे 3-4 दिन खराब हो जाते थे। देन धीरे धीरे, एंड इट इज नॉट द फिजिकल आसन्स और द फिजिकल योगा पोस्चर, इट्स मोर ऑफ अ मेडिटेशन एंड लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, फॉलोइंग द प्रिंसिपल और द सिद्धांत ऑफ योगा. It made me realize it's not worth it. I'm a complete in myself. I don't need an evaluation from a second person, be it my parents, my sibling, the love of my life, or the person I'm working with, or anybody who's in my friend circle to validate me. I am who I am, and I'm complete in myself. I have the happiness of remote. I have the happiness of the sad state of my mind. सो कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो चीजें नहीं अफेक्ट करेंगी अब मुझे। और मैंने इन चीजों को अपने अंदर ढाल लिया, एंड आई लर्न हाउ टू कंट्रोल माई लाइफ, एंड एटलीस्ट आई लर्न हाउ टू कंट्रोल माई रिएक्शन इफ द एक्शन इज बीइंग डन बाय समबडी एल्स। एब्सोल्युटली। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो क्या है? एंड और रिधि क्या-क्या हमें आपकी बहुत तरफ से देखने मिलेगा? रिधि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बट काफी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है। और मैं काफी बोल्ड चीजें नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई आई टुक अ टाइम, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी दैट क्वांटिटी। मैं एक मैं 3 साल 4 साल के बाद एक प्रोजेक्ट करूंगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बट इट शुड हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन पीपल। मुझे 10 प्रोजेक्ट या 8 प्रोजेक्ट 2 साल के स्पैन में नहीं करने हैं। और जहां पे यू लाइक टॉम डिक एंड हैरी, यू कम एंड गो, यू कम एंड गो। तो रही बात, आज हम योगा के लिए रखते हैं, और हम जल्दी मिलेंगे, और हम प्रोजेक्ट के बारे में भी चैट करेंगे। बट आपने मुझे कॉमेडी करते नहीं देखा है, तो आप मुझे कॉमेडी करते हुए देखोगे नए प्रोजेक्ट में, एंड वो कॉमेडी बड़ी मीनिंगफुल होगी। हाँ ना, वो हदें क्रॉस नहीं करेगी। Okay, okay. So Vivek, it was lovely having you, and all the best for your upcoming projects as well. Thank you so much, Riddhi. It was lovely chatting with Telecheska. You have a wonderful day ahead. God bless you. And please practice yoga. Let's make this International Yoga Day more popular. Sure, we'll try soon. Thank you. God bless you.